ফ্রেন্ডস, পিএম কিষাণ প্রকল্পে ইতিমধ্যে সর্ববৃহৎ একটি আপডেট। কৃষকদের অপেক্ষার অবসান এবার ঘটল। পিএম কিষাণ প্রকল্পের টাকা কবে দেবে ইতিমধ্যেই কিন্তু লাইভ পডকাস্টে জানিয়ে দিলেন একজন মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফার্মার ওয়েলফেয়ার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার একজন অফিসার। তিনি ডাইরেক্টলি লাইভ পডকাস্টের সাথে কিন্তু জানিয়ে দিলেন পরবর্তী অর্থাৎ 16 অফ ইনস্টলমেন্ট কবে কৃষকদের রিলিজ হতে চলেছে সেটি আপডেট আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে ডিটেলসে বাংলায় সর্বপ্রথম দিলাম। তাই ভিডিওটি না টেনে অবশ্যই পুরোপুরিভাবে দেখুন। টোটালটাই লাইভ টেলিকাস্টটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব, সাথে জানতে পারবেন পিএম কিষাণ নেক্সট ইনস্টলমেন্ট যে ওয়েটিং ফর অ্যাপ্রুভাল বাই স্টেট চলে এসেছে, সে ওয়েটিং ফর অ্যাপ্রুভাল বাই স্টেটের যে আপডেটটুকু রয়েছে সেটি অলরেডি আপনারা অনেকদিন আগেই এসছে, কিন্তু এফটিও প্রসেসটে এস আসেনি, নই রয়েছে, সাথে আরএফটি সাইন বাই স্টেট এখনও পর্যন্ত কৃষকদের স্ট্যাটাসে আসেনি। ইতিমধ্যে আপনারা জেনে গেছেন যে কমন সার্ভিস সেন্টারের আওতায় যেনারা ভিএলইজ রয়েছেন তাদের জন্য একটা ইনসেন্টিভ রেখেছে, সেটা হচ্ছে কি ইকেওয়াইসি ক্যাম্পেন। সেটা চলবে 12 তারিখ থেকে 21 তারিখ পর্যন্ত। আর ইতিমধ্যেই পিএম কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্প রিলেটেডও সেখান থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপডেটটি চলে আসছে। তাই আর কথা না বেড়ে আজকের এই ভিডিওর মূল পর্বে আমরা চলে যাচ্ছি এবং আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে কি জানিয়েছেন এবং সেখান থেকে আপনারা কি জানতে পারবেন, আপনাদের জন্য কি সেখানে আপডেট রয়েছে। অর্থাৎ পিএম কিষাণ প্রকল্পে রিলেটেড একটি মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচারের অফিসার তিনি কিন্তু টোটালটা এক্সপ্লেইন করলেন এবং সকলকেই কিন্তু জানিয়ে দিলেন যে কিভাবে কোঅপারেট করছে কৃষকদেরকে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট দিয়ে যে সাহায্য করছে, তাতে কি কি সুবিধে কৃষকরা পাচ্ছেন। তো সেই সংক্রান্ত আপডেটের দিকে আমরা এবার টোটালটাই আপনাদেরকে দেখাবো এবং আপনারাও জানতে পারবেন যে আপনি ইতিমধ্যে তিনিও যেটাও জানিয়েছেন প্রায় 9 কোটিরও বেশি কৃষকদেরকে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইকুয়াল 3 ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু প্রোভাইড করছি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। যেমনটা আপনারা জানেন 3টি ইনস্টলমেন্ট এপ্রিল টু জুলাই, ডিসেম্বর টু মার্চ অ্যান্ড আগস্ট টু নভেম্বর, এই 3টি ইনস্টলমেন্ট রিলিজ করা হয়ে থাকে প্রত্যেক বছরে, যেটি পিএম কিষাণ স্কিম এক্সক্লুশনের ওপরে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পিএম কিষাণ স্কিম ইজ 100% ফান্ডিং অফ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। এটি সম্পূর্ণ কেন্দ্র সরকারি সহায়তা করে থাকে এবং আন্ডার দ্য স্কিম ইনকাম সাপোর্ট অফ 6,000 পার ইয়ার ইন 3 ইকুয়াল ইনস্টলমেন্ট উইল বি প্রোভাইডেড টু অল ল্যান্ড হোল্ডিং ফার্মার ফ্যামিলিজ। যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে টাকাটি দেওয়া হয়ে থাকে সেটি সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এবং যে টাকা রয়েছে সেটি কিন্তু ইকুয়াল ইনস্টলমেন্ট 6,000 টাকা প্রত্যেক বাৎসরিকে দেওয়া হচ্ছে এবং এখানে আপনারা দেখবেন পার ইয়ার ইন 3 ইকুয়াল ইনস্টলমেন্টে প্রোভাইড করছে কৃষকদেরকে এবং সেটা কিন্তু যারা চাষযোগ্য জমি রয়েছে তাদের পরিবারকে, মানে এখানে পরিবার উল্লেখ করছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা অন স্ক্রিনে যে ইনস্টলমেন্ট উইল বি প্রোভাইডেড টু অল ল্যান্ড হোল্ডিং ফার্মার্স। এখানে ফার্মার্স বলছে না, ফার্মার ফ্যামিলিজ, তাদের পরিবারগণকে। এখান থেকে আমরা ডিটেলসে জানতে পারলাম 6,000 টাকা আমরা ইনস্টলমেন্ট পেয়ে যাচ্ছি। আর চলুন আপনাদের এবার অপেক্ষার অবসান কেন বললাম সেই ভিডিওটি এবার লাইভ টেলিকাস্টে আপনারা স্কিপ করে করে দেখবেন, কারণ যে জায়গাটাতে পিএম কিষাণ 16 ইনস্টলমেন্ট বলেছে সেটা আমি ডাইরেক্টলি মেনশন করলাম না। টোটালটা কি বলেছেন কৃষকদের উদ্দেশ্যে সেটি আপনারা হিন্দিতে শুনে নিন, সেখান থেকে তিনি কি জানিয়েছেন মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচারের একজন অফিসার, তো আমরা সেখান থেকে জেনে নিচ্ছি। जी नमस्कार। सीएससी के ऑफिशियल फेसबुक पेज के इस लाइव सेगमेंट में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीएससी बीच बीच में आप सभी लोगों के लिए कुछ इस तरीके के इनिशिएटिव्स और स्कीम्स लेके आती है जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है, आप वेली भाइयों और बहनों से। और इस बार जो हम बात करने वाले हैं और जो हम इस बार जो चर्चा करना चाह रहे हैं वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेके, और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ श्री मनोज कुमार गुप्ता सर, जो कि एडवाइजर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार अभिकांत जी, नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर इस अपना कीमती समय देने के लिए। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सार्थक सचदेव, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सीएससी एसपीवी के, और इस पूरे इनिशिएटिव्स को सीएससी के हवाले से देख रहे हैं। सार्थक, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो सर बातचीत की हम शुरुआत आगे करें, और उससे पहले हम आगे बढ़े, ये जो हम इस बार जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं, जो आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप स्पॉट हैं सर और डिपार्टमेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक बार सर फिर से हम बहुत 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 ग्राउंड से समझना चाहेंगे कि ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना आखिर है क्या।
धन्यवाद रवि जी, और आपके माध्यम से जो भी हमारे सीएससी के लाइव जुड़े हुए हैं उन सारे लोगों को नमस्कार। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसको प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने वर्ष 2019 में लॉन्च किया है। इसका बेसिक मतलब ये है कि वह किसानों को जो है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में उनको 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, ताकि वह उनसे खेती से जुड़ी हुई समस्याएं या जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे फीड सीड्स है, फर्टिलाइजर है, या अदर जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट है, वो उनकी पूरी हो सके। तो ये 6,000 रुपये भारत सरकार 2000 की 3 किस्तों में वो उनको जो है पैसे रिलीज किया जाता है। तो ये पीएम किसान योजना उन सभी किसानों के लिए अप्लीकेबल है जिनके पास अपनी किसानी खेती योग्य भूमि है। तो 3 सीजन है हमारे यहाँ, खेती के 3 सीजन होते हैं। एक तो हमारा रबी होता है, जिसको कि विंटर सीजन में होता है। तो हम विंटर की जो खेती के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए हम अक्टूबर या नवंबर के मंथ में पैसा एक इंस्टॉलमेंट रिलीज करते हैं। दूसरा हमारा जो समर जायद क्रॉप होती है, जो समर का शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, उसके लिए हम फरवरी में मंथ में रिलीज करते हैं, फरवरी और मार्च के मंथ में। और फिर हमारा जो आपका खरीफ सीजन होता है, जो कि मानसून के साथ लिंक होता है, तो हम उसके लिए मई में लगभग जो है रिलीज करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है जो भी किसान हैं जो योग्य हैं, जिनके पास खेती योग्य भूमि है, और जो इसके 6,000 रुपये प्रतिवर्ष 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार की से उनको लाभ मिलता है। जी, बहुत शुक्रिया सर। ये तो बहुत फैक्ट है, लेकिन एक चीज थोड़ा सा और समझना है कि जो पहले किस्त दी जाती थी और जो अभी हम दे रहे हैं, जो आपने बताया कि 2-2 हजार के इक्वल इंस्टॉलमेंट में दी जा रही है, तो सर चैलेंज किस तरीके का आ रहा है और इसको लेके किस तरीके का किसानों में रुझान दिख रहा है आपको? चैलेंज ऐसा सच कोई स्पेशल या विशेष कोई चैलेंज तो ऐसा नहीं है। और चूंकि इसमें हमारे लगभग जो आज के समय में जो अभी हम 16th इंस्टॉलमेंट रिलीज करने वाले हैं फरवरी के अंत में, लगभग हमारे पास आज अभी करीब 9 करोड़ फार्मर्स उसमें योग्य हैं, जिनको ये लगभग ये हमारा 16वां इंस्टॉलमेंट मिलेगा। शुरुआती तौर पे जब ये स्कीम हमने लॉन्च किया था और जब हमने जो बेनिफिट दिया था, तो जो भी हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट से डेटा आए थे और उसके बेसिस पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में उसको जैसे हमने कुछ क्राइटेरिया थे, तो उसको ये ऐसा कोई नया क्राइटेरिया नहीं था, उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। जैसे लैंड था, तो लैंड चूंकि कल्टिवेबल लैंड इसकी एक प्रिंसिपल क्राइटेरिया है, एक मेन है कि उस जो भी किसान है उनके पास ये लैंड होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने लैंड सीडिंग कराया। तो बहुत सारे फार्मर्स हमारे लगभग करीब 10 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स हैं जिन्होंने लैंड सीडिंग करवा चुके हैं। तो लैंड सीडिंग के बाद जो है हमारा एक दूसरा ये होता है कि चूंकि अकाउंट में हम पहले अकाउंट बेस में पेमेंट करते थे, तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां हो जाती थी। किसी का पैसा दूसरे के अकाउंट में चला जाता था गलती से, सरकार के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के किसी कर्मचारी के द्वारा भी कभी कभी वो अकाउंट नंबर लिखने में भी दिक्कत हो जाती थी। तो जिसको जो है ये हुआ कि हम ऐसा कोई सिस्टम अडॉप्ट करें जिसमें मशीन टू मशीन वेरीफाइड सिस्टम हो। तो उसके लिए एक आधार सीडेड बैंक अकाउंट रखा गया कि अगर हम उसमें पैसा देने के लिए, तो उसके लिए सरकार के पास या हमारी जो पीएम किसान योजना में किसी के बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम सिर्फ उसका आधार सीडेड जो बैंक होता है, वो आधार सीडेड बैंक अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। तो बहुत फार्मर्स जो हमारे हैं उन्होंने आधार सीडेड बैंक का अकाउंट करवा लिया है, और जैसे ही बैंक अकाउंट में आधार सीड हो जाता है, हम उनको सारा का सारा पैसा उनको हम रिलीज कर देते हैं। तो कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनका आधार सीडेड नहीं है, तो अगर वो भी कर लेंगे तो उनको भी हम उनकी सारी जो भी एक तो रुकी हुई जो किस्तें हैं वो भी मिल जाती हैं, और जो हमारा तुरंत जो इंस्टॉलमेंट आगे वाले हैं वो उनको रेगुलर मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ई-केवाईसी, चूंकि ई-केवाईसी से यह होता है कि वो चूंकि 5 साल पहले से हमने स्कीम चलाए हैं, तो वो जो व्यक्ति हैं, फार्मर हैं, वो उनकी क्या स्थिति है, वो वही आदमी हैं जिनके नाम से जो है, जिनका आधार लगा हुआ है, जिनके आधार से वो पीएम किसान स्कीम मिल रही है, वही व्यक्ति है या कोई दूसरा आदमी उनका जो है आधार लेके यूज कर रहा है। इसके लिए हम लोगों ने ई-केवाईसी को मैंडेटरी किया है। तो ई-केवाईसी मैंडेटरी से इससे क्या हो जाता है कि जो भी किसान हमारे यहाँ रजिस्टर होते हैं उन्हीं को पैसा जाता है और उन्हीं के आधार सीडेड बैंक अकाउंट में।
तो जो हमारी सरकार, जो मोदी जी की सरकार में यह होता है कि हमें जो है किसी भी विदाउट एनी मिडलमैन सीधे सरकार से पैसा वो किसानों को, लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे चला जाए, तो उस पूरे सिस्टम को ये कंप्लीट करता है। तो इस प्रोसेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका आधार सीडेड है, अगर वह भी अपना ये करा लेंगे तो उनको भी है सारा बेनिफिट सुचारू रूप से मिलता रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से सर आपने समझाया, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप करूंगा कि जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस सेशन में, क्योंकि ये सेशन सीएससी की ऑफिशियल फेसबुक पेज पे है, यूट्यूब पे है, और एग्रीकल्चर की ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट हैंडल है उस पर भी ये चीजें एक साथ लाइव दिख रही हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि आप सब लोग तो पहले वहां जुड़े, अपने सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें और उन सवालों को हम जरूर उठाएंगे। और सर हमारे साथ यहाँ पे सीधे हैं मनोज सर, हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे और उसका उत्तर लेंगे। सर ये तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ये एग्जैक्टली स्कीम क्या है, और स्कीम को ये ई केवाईसी जो करने का हमने प्रोसेस इस बार रखा है उसके पीछे की मंशा क्या थी। 12 से 21 फरवरी जो हम ई केवाईसी का कैंपेन चला रहे हैं, इस कैंपेन के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में बता सकें कि जिन किसानों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराई है वो 12 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में ई केवाईसी कैसे कराएं, कहाँ कराएं, और कराना कितना मैंडेट है, कराते हैं तो फायदा क्या है और नहीं कराते हैं तो नुकसान कितना है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा। और चूंकि अभी हमारा जो अभियान है, चूंकि हम लगभग 16वीं किस्त फरवरी के अंत में या मार्च के फर्स्ट वीक में रिलीज होने वाली है, तो जिसमें सारे जो भी हमारे फार्मर्स हैं जो कंडीशन पूरी करेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर्स का हमारे पीएम किसान स्कीम का एक बहुत प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स है, और सीएससी का हमें बहुत सहयोग मिला है हमें इस स्कीम को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करने में। सीएससी गांव से जो मतलब स्टार्ट होती है और वहां पे हमारे किसान वो उपलब्ध करा पाते हैं अपने जो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से फार्मरों को जानकारी उपलब्ध कराना, उनका लैंड डिटेल्स चेक करना, उनको सेल्फ रजिस्टर करना, इस तरह से करते हैं। तो इसी चूंकि जो व्यापक माध्यम है आपका, लगभग 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो है, और लगभग ये माना जाता है कि हर एक ग्राम में आपके जो है एक शाखा है, तो उसी के तहत ये सुनिश्चित किया गया, निश्चित किया गया कि हम जो है इसमें एक 12 फरवरी से 21 फरवरी तक 10 दिन का एक इंटेंसिव कैंपेन जो है चलाएं, जिसमें जो लेफ्ट आउट फार्मर्स हैं उनका हम ई केवाईसी करा सकें जो है। तो उसके लिए ई केवाईसी जो है, तो हमारा जो कॉमन सर्विस सेंटर्स पे जो फार्मर्स लोग हैं वो लोग जाके अपना ई केवाईसी करा सकते हैं। ई केवाईसी कराने के और भी हमारे पास जो माध्यम है, एक तो प्रधानमंत्री पीएम किसान फेशियल ऑथेंटिकेशन जो मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करके लोग उसमें भी रजिस्टर करके वो अपना भी जो है वो ई केवाईसी कर सकते हैं। और एक उसमें एक सहूलियत भी है कि अपना भी कर सकते हैं और किसी और का भी अगर चाहें तो अपने कुछ जो नज़दीकी फार्मर्स हैं उसमें इस तरह की सुविधा दी गई है, वो भी कर सकते हैं। और पीएम किसान पोर्टल पे भी ई केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। अब चूंकि टेक्नोलॉजी है और ये माना जाता है कि जो हमारे जो फार्मर्स लोग हैं आजकल चूंकि सारे टेक्नो से भी हैं, और काफ़ी सारे लोग जो है अपने पोर्टल के भी माध्यम से जाके कर लेते हैं, और पीएम किसान फेशियल ऑथेंटिकेशन जो मोबाइल ऐप है उसको भी यूज कर रहे हैं। लेकिन कॉमन सर्विस सेंटर की जो सुविधा है वो बहुत मतलब सुलभ है, और वो चूंकि जो भी आपके जो वीएलईज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, और लोगों को वो जो उनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है चूंकि बीएलईज को पता है, और शायद फार्मर्स के पास कभी जानकारी का अभाव भी थोड़ा बहुत हो सकता है, तो उस माध्यम से उस पूरी करके वो उनका जो ई केवाईसी है वो अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कर लेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत 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 डिटेल में आपने बताया। अब मैं थोड़ा सा सर आपको एक मिनट के लिए यहाँ रोकूंगा, और हमारे साथ चूंकि सार्थिक भी हैं जो पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट को सीएससी के हवाले से देख रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो सार्थिक, मैं थोड़ा सा आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि ये स्कीम जो 12 से 21 चल रही है, इसमें इस बार वीएलई को किस तरीके का बेनिफिट है, और किस तरीके का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन टाइम लाइन में कितना केवाईसी हो पाएगा, और कहाँ पे हम खड़े हैं आज की डेट में। सार्थिक। विवेकानंद जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। सो हमारे वीएलईज ने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपको मैं नंबर्स के माध्यम से बताऊं तो आप यकीन करिए कि 8-8.5 करोड़ में से करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा जो ई केवाईसीज हुए हैं वो सीएससी के माध्यम से हुए हैं, और सारे के सारे बायोमेट्रिक वाले हुए हैं। तो सीएससी वीएलईज ने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो अभी ड्राइव है फोकस्ड है
जो लोग रह गए हैं, जिनको जो अभी तक अपना EKYC नहीं करा पाए हैं, उन्हीं लोगों को ढूंढ के उनको उस स्कीम का बेनिफिट दिलाया जाए। CSC की टीम अभी उसी पे काम कर रही है, बिकॉज ओवर द टाइम अगर वो EKYC नहीं होगा तो फार्मर्स को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अभी लास्ट किस्त भी जो सर ने भी बताया, एडवाइजर साहब ने भी बताया कि वो भी अभी पेंडिंग है, जिनका EKYC नहीं हुआ। अगर वो EKYC करवा लेते हैं तो पुराना किस्त और ये वाला किस्त दोनों उनको उनके खाते में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं। इसकी 3-4 प्रक्रिया मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। उसको लैंड सीडिंग भी कराना है, उसको बैंक अकाउंट से आधार भी जुड़वाना है और फिर EKYC भी करवाना है। 60 लाख 70 लाख ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने पहली 2 प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और सिर्फ उनका EKYC पेंडिंग है। जैसे ही वो EKYC करेंगे, इमीडिएटली उनकी जो फार्मर्स की जो इंस्टॉलमेंट है उनको वो मिल जाएगी। तो आई थिंक CSC VLEs इस काम पे लगे हुए हैं। उन्होंने बहुत काम ऑलरेडी किया है, उनको सब पता है किस प्रोसेस से करना है। तो बेनिफिट अगर आपने पूछा कि CSC ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल बेनिफिट है, जो हमने उनको बताया है कि एक KYC का 15 रुपए उनको मिलता है, वो फार्मर से वो चार्ज करते हैं। कुछ स्पेशल इंसेंटिव स्कीम हमने भी इसके लिए लॉन्च की है, जो उनको स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा अगर वो इसमें अच्छा काम करते हैं अगले 10 दिन में, या जो 12 तारीख से जो कैंपेन चल रहा है। बट दूसरा पॉइंट आई थिंक इसमें सेटिस्फेक्शन भी है उस फार्मर को, वो उसका इंटाइटलमेंट दिलाना, जिसका वो हकदार है और वो किसी ना किसी कारण से उसका रह गया है, वो CSC कर सकता है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल बेनिफिट एक है, बट साथ में सोशल बेनिफिट, सेटिस्फेक्शन पार्ट भी इसमें जुड़ा हुआ है। राइट। इसमें सार्थक सर आपने बताया कि VLEs को इस बार खासा इंसेंटिव इस बार रखा गया, तो जो मैं देख पा रहा हूँ कि वो बेस्ट VLEs के लिए हमने एक अच्छी रकम रखी हुई है, और उसी तरीके से जो टॉप 5 VLEs हैं, टॉप 10 VLEs हैं, टॉप 20s हैं और टॉप 50 हैं, जिनको हम अप्रिशिएशन लेटर भी देने की बात कर रहे हैं, ये कितना मददगार साबित होगा VLEs को इस एक KYC को करने के लिए और पूरा करने के टास्क को लेकर? देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ स्कीम में उतना इनकम नहीं हो पाता और VLE एक्चुअली उसमें बहुत एफर्ट करता है। तो ये स्कीम उसी सेंस में उनको दिया गया है कि वो जितना अच्छा काम कर रहे हैं उसमें उनको कुछ इंसेंटिव और कुछ रिकॉग्नाइजेशन भी मिले। तो हमें उम्मीद है कि VLEs ये जानते हैं कि ये काम करने से उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है। कि आप 25,000 रुपए जो हमने टॉप सबसे अच्छा VLE जो पूरे इंडिया में करेगा उसको दिए जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इंसेंटिव हमने उनके लिए रखे हैं उनको दिए जाएंगे। इस बार एडवाइजर सर की मदद से और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की मदद से हमने ये भी उनसे अप्रूवल करवाया है कि जो अच्छा काम करेंगे, मिनिस्ट्री भी उनको एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देगी। या वो सेंट्रल मिनिस्ट्री दे या डिपार्टमेंट दे, ऑफ कोर्स इट कैन बी वर्कड आउट। तो वो भी इस बार रखा गया है और मुझे उम्मीद है कि VLEs इसको इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा काम करके दिखाएंगे, क्योंकि ये एक ड्राइव खत्म हो जाएगा एक दिन के बाद। जो पुराने फार्मर्स हैं फिर वो उनको एंटाइटलमेंट शायद मिल ही ना पाए। तो यही चांस है VLEs के लिए भी और फार्मर्स के लिए भी कि अब KYC करवा ही ले। राइट। ये स्क्रीन पर सार्थक आपको दिख रहा होगा और बाकी हमारे जितने ऑडियंस हैं, VLEs हैं, उन सबको दिख रहा होगा कि ये हम देख रहे हैं कि 12 से 21 तक के लिए हमने एक ये मेगा EKYC कैंपेन लॉन्च किया है, और जिसमें VLEs के हवाले से हमने इस पर लिखा है कि बेस्ट VLEs को 25,000, टॉप 5 VLEs को 10,000, टॉप 10 को 5,000 एंड नेक्स्ट टॉप 20 VLEs को 2,000। और इसके अलावा जो टॉप 50 VLEs हैं उनको हम डिपार्टमेंट की ओर से एक ऑफिशियल लेटर और एक उनको साइटेशन हम देंगे। तो आई थिंक ये एक बड़ा इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव से जुड़ के VLEs को सीधे सीधे फायदा होने वाला है। और नो डाउट कि अगर आप एक एंड यूजर की मदद करते हैं, किसानों की मदद करते हैं, तो जो उसका एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है वो एक अलग लेवल पे होगा। उसको शायद हम पैसे से नहीं देख पाएंगे। हमारे साथ मनोज सर भी हैं और सर्दी का बने रहिए यहाँ पे। एक पॉइंट में क्योंकि काफी लोग सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रहता है कि इंसेंटिव कब आएगा, कितना टाइम लगेगा, अनाउंस तो कर दिया। हाँ, मैं सवाल मेरे पास आ रहा है, अभी मैं आता है। जी ठीक है, आप जी बताइए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे ये अभी आपने कहा और मैं भी सवाल लेता भी, फेसबुक और ट्विटर पे मैं देख रहा हूँ लगातार सवालों की झड़ी लगी हुई है। कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से सवाल है, कुछ आपके तरफ से सवाल है। तो पहला तो आपने खुद ही उठा लिया, पहले आप उसी का जवाब दे दीजिए कि जो अच्छे VLEs होंगे और जिन्होंने बहुत अच्छा EKYC डन करेंगे,
उनको ये इंसेंटिव आप कब तक उनको डिसबर्स करने वाले? थोड़ा सा टाइम बढ़ा के बोलिएगा जिससे कि उससे पहले चला जाए उनको। जी बिल्कुल। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आई थिंक ये जो है 21 तारीख को इसका मतलब लास्ट डेट है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस पे पूरा काम करके फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इसका पैसा जो है वो वीएलईज के अकाउंट में पहुंचा देंगे, इतना हम इंश्योर करेंगे। आपने बोला बढ़ा के, तो मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ, उससे पहले हम पूरा कोशिश करेंगे उससे पहुंच जाए। बट हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में जो टॉप वीएलईज हैं जो ये इनिशिएटिव को में अच्छा काम करेंगे, उनके डीजीपे अकाउंट में जो हम भेजते हैं, जहाँ पे हम कमीशन क्रेडिट करते हैं, वहीं पे उनको पैसा जो है टाइम से उनको मिल जाएगा। राइट। और जो भी ये टॉप निकल के आएंगे उनको एक फॉर्मली आप अनाउंस भी करेंगे आई थिंक, और उसमें जिन लोगों की डिटेल्स निकल के आएगी फॉर श्योर होगा कि उनको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या यूं कहें कि 10 मार्च के पहले पहले उनके अकाउंट में वो पैसा डिसबर्स हो जाएगा। राइट? हाँ जी।